Okay, Ji. So let's start. The topic which we covered last week, that was about the Access network, if you remember. And in the Access network, what is the job of the Access network? The job of the Access network is to connect the homes or the small businesses with the ISP. Any network, like for example, you have a connection at home, so you are connected to some connected to some ISP. It might be PTCL, it might be in your case Natel, it might be in your case Storm Fiber, it might be in your case the mobile data. So there are number of options which are there, mobile data. So among what are the technologies which are responsible to provide you this connectivity? Because on one hand, we have the ISP, the central office, where the internet is available, but not available at our home. So we need a network between our home, our business, our office, our enterprise to this central office. This network is called access network. Now, simply I can say that I can divide the user as a home user, small office, home office, for example, and I can have a enterprise user as well. Like your university is an enterprise, for example, big organization like Shah University, for example. So what are the technologies which are available? We talked about the modem in the last class, but the latest modem at that time was providing you 56 kilobit per second link only, kilobits per second link only. So in the today's scenario, even this 56K was a theoretical limit. In the reality, it was not more than 5 to 6 kilobit per second. So in the today's scenario, 5 to 6 kilo is nothing. That's the reason further advancement in this area we haven't seen. Right? यहाँ पे क्या होता था कि क्यों जरूरी था? क्योंकि हमारी जो टेलीफोन लाइन है वो आज भी एनालॉग है, वो आज भी एनालॉग है. यानी कि the network from your home up to the telephone exchange is an analog something. Is carrying the analog signal, your voice. It has been crafted, it has been implemented to carry only the voice traffic, which is analog. But your computer was creating digital data. So the job of this modem was to convert the digital from computer to analog and give it to the central office, ISP. And when the signal was coming from the ISP, again it was analog. And that analog signal need to be converted to digital and given to your computer. So that was the basic job of this modem. Because of this speed, and the other disadvantage was that if you are using an internet on this line, no other voice traffic is possible. यानी जब आप इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू हो जाते थे तो उस वक्त आपका जो वॉइस यानी आप दुनिया से कट गए और आपका इंटरनेट कनेक्शन तो घंटों चलता है, इसका मतलब है आपकी घंटों फोन बिजी जाती थी. तो दैट वाज द डिसएडवांटेज. एडवांटेज ये था कि कोई एक्स्ट्रा नेटवर्क बिछाने की जरूरत नहीं थी. एग्जिस्टिंग टेलीफोन नेटवर्क ही ने सारा नेटवर्क ही काम कर रहा था. That was a good point. But speed was low. And number two, if you are connected with an internet, which means the rest of your communication with the rest of the world is not possible. बात समझ आ गया? Then हमारे पास आया ADSL. इसको क्यों A कहते हैं? Because it is asymmetric. Because it is asymmetric. What mean by asymmetric? It means that the upload and download, control C. The upload, इसका मतलब है कि upload and download not equal. ठीक है? Not equal. क्यों not equal?
इस वजह से कि एक उस वक्त भी, आज भी समवट ये एक ट्रेंड मौजूद है कि ऑर्डिनरी यूजर, ए होम यूजर, ए स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस यूजर मोस्टली डाउनलोड्स एंड अपलोड्स वेरी लेस। पूरे दिन में अगर आज मैं आपसे पूछूं कि आपने कितनी ईमेल्स की हैं, might be 1, might be 2, might be 5, not more than that, maybe 0. So in this case, which means you are uploading too less and you are downloading. अगर मैं कहूँगा आपने कितना YouTube की आज देखा है, कितना आपने Facebook को सर्व किया है, तो that will be too much. तो इस वजह से आज भी it might be a good solution कि your download is more and upload is less. That's the reason we may go for the ADSL. इसका खूबी ये हुई कि as compared to 56K, it was possible to have in megabit per second. Up to 20 megabit per second approximately download was possible, and upload more than approximately 1 megabit per second upload was also possible. Or again, good point, existing network ही इस्तेमाल हुआ. Only what you have to do, you have to put a modem, a DSL modem at your end, at your home, and a DSLAM, a multiplexer basically, DSLAM on the receiver end. तो आप at the ISP end, यानी कि आपके एंड पे you only need a DSL modem, और कंपनी एंड के ऊपर what is required, DSLAM. ठीक है. What is a DSLAM? DSL AM. DSL तो आपको पता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, and AM means access multiplexer. So basically it was multiplexing the voice from the telephony and the data from the ISP and send it as a single onto the single cable. यानी इसके लिए दो अलग अलग केबल्स की जरूरत नहीं है. आप में से कई लोग आज भी DS उनके घर पे probably. So we have, that's nice, recording in progress, and sharing is also there, which is nice. And I have a few of my students on online today, and Hasib, Hassan and Tayyib. So okay, you are welcome all. Okay, तो मैंने अभी कहा कि आपका जो टेलीफोन है, अगर मैं ये कहूं कि ये मेरी टेलीफोन लाइन, ये मेरे ISP है और ये मेरा घर है. आज मेरे पास पेन नहीं है, लेकिन होपफुली हम फिर भी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे. अब आपको पता है कि यहाँ पे दो पार्ट्स हैं. एक आपका जो सेंट्रल ऑफिस है, ये आपको हेलो प्रोवाइड करता है, यानी वॉइस प्रोवाइड करता है. चलिए हेलो की बजाय मैं लिख देता हूँ वॉइस, V फॉर वॉइस. ठीक है. एक जगह पे आपको ये क्या प्रोवाइड करता है, ज़ैन, वॉइस, और दूसरी तरफ ये आपको प्रोवाइड करता है डेटा. ये आपको प्रोवाइड करता है डेटा. अब हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है कि इन दोनों को मुझे इकट्ठा करना है, और इकट्ठे करने का काम आप लोग सब इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग से तलक है आपका मोस्टली, और अगर नहीं भी है तो कंप्यूटर साइंस से आपका तलक है. आपको पता है कि हमने DLD पढ़ते हैं और उसमें हम मल्टीप्लेक्सर पढ़ते हैं. तो मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, मल्टीपल को एक में कन्वर्ट कर देता है. मल्टीपल इनपुट्स, वन आउटपुट. और दूसरे एंड के ऊपर मल्टीप्लेक्सर का काम उल्टा क्या होता है, डीमल्टीप्लेक्सर, जहां पे वो एक लेता है और उनको अलग अलग डिवाइड कर देता है. अब बात समझ आ गई? तो द क्वेश्चन इज कि यहां पे हम DSLAM लगा देते हैं, यहां पे हम DSLAM लगा देते हैं, ये DSLAM लग गया, और वो इन दोनों को कंबाइन करके हमारे घर की तरफ भेज देता है. इसी तरह हमारे घर पे यहां पे अगेन एक स्प्लिटर होता है, जिसका एक इनपुट होता है और दो आउटपुट होते हैं. इट इज ए पैसिव डिवाइस. तो आप इस स्प्लिटर को दे देते हैं, और एक स्प्लिटर का, ये लेट करो कि स्प्लिटर है, इस स्प्लिटर का दो आउटपुट्स हैं. एक आप दे देते हैं अपने कंप्यूटर को,
या वायरलेस एक्सेस पॉइंट को, और दूसरा आप दे देते हैं अपनी टेलीफोनी को, आप दे देते हैं अपने टेलीफोन सेट को। ये मैंने टेलीफोन सेट रफली सा आज बना रहा हूं, लेकिन चलें, समझ तो आ रही है, डेट्स एनफ। तो ये 2 में कन्वर्ट हो गया। तो यहां से अब आपका फायदा क्या हुआ कि बोथ यूर डेटा एंड वॉइस, यहां पे आपका डेटा आ रहा है अब, और यहां पे आपका वॉइस आ रहा है, तो आपको दोनों साइमल्टेनियसली मिल रहे हो। कुछ बात समझ आ रही? तो ये क्या हो गया? एक्सेस मल्टीप्लेक्सर। जी जेंटलमैन, डीमल्टीप्लेक्सिंग का टास्क कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि ये कोई एक्टिव डिवाइस नहीं है, इसलिए इसका नाम स्प्लिटर रखा गया हुआ है। ठीक है, ओके। अब हो क्या रहा है, इसी तरह जब आप डेटा भेज रहे हैं, आप वॉइस भेज रहे हैं, ये दोनों असल में ये क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे होते हैं। यहाँ पे एफडीएम चल रहा होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। लो फ्रीक्वेंसी का हिस्सा दिया जाता है, आपको पता है 0 to 4K, ये पार्ट दिया जाता है वॉइस को, और 1 मैक्स से अबव का जो पार्ट होता है वो डेटा को। तो यूं ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते। और जब यहां आता है तो इसको डीमल्टीप्लेक्स करके वॉइस का पार्ट सर्किट को दे दिया जाता है, और डेटा का पार्ट पैकेट को दे दिया जाता है। मेरी को बात समझ आ रही? शाबाश, पूछें जहां पे बात समझ नहीं आ रहा हो, जब तक पूछेंगे नहीं, एक दफा रिपीट कर देखें। द क्वेश्चन इज कि अगर ये मेरा डेटा आ रहा है, यहां मैंने अपना कंप्यूटर लगाया है, मैं यहां से ईमेल कर रहा हूं, मैं यूट्यूब कर रहा हूं, मैं फेसबुक कर रहा हूं, मैं ट्विटर कर रहा हूं, व्हाट्सएप कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं। दूसरी तरफ मेरा कोई घर में ही मेरे वॉइस कर रहा है, हेलो कर रहा है। अब ये दोनों सिग्नल्स स्प्लिटर पे आएंगे, और स्प्लिटर के जरिए इस डीएसएलएम पे आ जाएंगे। डीएसएलएम वॉइस को अलग अलग करके वॉइस का पार्ट सर्किट स्विच के हवाले कर देगा। ये पार्ट सर्किट स्विच टेलीफोनी के कह लेंगे, सर्किट स्विच टेलीफोनी हमारी अभी भी मोस्टली सर्किट स्विच्ड है, तो ये सर्किट के हवाले कर देगा। जबकि डेटा जो है वो पैकेट स्विचिंग के जरिए, और मैं एक्सप्लेन करूंगा कि सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग क्या, दोनों में फर्क क्या है। ये दो डिफरेंट चीजों की तरफ, पैकेट जो होगा वो चला जाएगा राउटर्स के पास, और जो वॉइस है वो चली जाएगी सर्किट्स के पास। मैं बात समझ आ रही है? इज इट क्लियर? नाइस जी। तो चीज तो अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर हमारा ट्रेंड लाजमी तौर पे, टेक्नोलॉजी तब्दील होती है आपके ट्रेंड से। या तो आपका ट्रेंड बदल जाता है, या हम आपका ट्रेंड बदल देते हैं। यानी हम बीइंग ए बिजनेस, टेक्निकल बिजनेस एक्सपर्ट्स, हम कोशिश करते हैं कि हम अपने बहने लोगों का मिजाज अपनी फील्ड के मुताबिक बनाएं। यानी आपने देखा होगा कि आजकल इवन आप अगर फॉर एग्जांपल किसी ऐसी जगह पे बैठे होते हैं जहां पे आपको शायद मोबाइल नहीं यूज करना चाहिए, अब वहां भी टक टक कर रहे होते हैं, तो हमने आपका मैंने एक मिजाज या तो बदल दिया, या आपने खुद बदल लिया, व्हाटएवर। अब ये होना लगा कि हमें अप डाउनलोड करने, जैसे मैंने अभी कहा कि इसका एक ही अच्छी बात भी थी कि इसका अपलोड कम था, डाउनलोड ज्यादा था, लेकिन अब हमारा अपलोडिंग का काम भी ज्यादा हो गया है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, जब कोविड का टाइम स्टार्ट हुआ तो इंस्ट्रक्टर्स को, टीचर्स को कहा गया घर से बैठ के पढ़ाओ और लेक्चर्स इनकी तरफ पहुंचाओ। उसके लिए लाजमी तौर पे मेगाबाइट्स जनरेट होते थे एवरी डे, उसको अपलोड करने में बहुत टाइम लगता था, स्टूडेंट भी तंग होता था और हम भी उससे इतना खुश नहीं थे। इस वजह से डीएसएल की तरफ लोगों का ट्रेंड कम हो गया। फिर हमने कहा कि पाकिस्तान में नहीं लेकिन वर्ल्ड दुनिया में आपके केबल नेटवर्क से भी ये काम लिया जा सकता है, क्योंकि कोएक्सियल केबल है, इट कैन कैरी मोर देन दी ट्विस्टेड पेयर, क्योंकि यहाँ पे तो ट्विस्टेड पेयर केबल इस्तेमाल हो रही है डीएसएल में, एडीएसएल में, जबकि यहाँ पे आपकी कोएक्सियल केबल इस्तेमाल हो रही है। तो इजिली हम उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो ला रहे हैं, तो क्या हम उसमें इंटरनेट नहीं ला सकते? ला सकते हैं। तो ये भी एक सोर्स था
एज एन एक्सेस नेटवर्क के इस्तेमाल का। बात समझ आ रही? फिर हमने कहा कि एक वक्त आया कि कॉपर हमने समझा कि बस ये अपनी पीक को इसने अचीव कर लिया है, हमें उससे ज्यादा चाहिए। अब हमें मेगाबिट पर सेकंड नहीं चाहिए, अब हमें गीगाबिट्स चाहिए, और कल हो सकता है हमें टेराबिट्स पर चाहिए। तो उसके लिए ओनली सोल्यूशन ये था कि हम किसकी तरफ चले जाएं, ऑप्टिकल की तरफ चले। तो हमने फाइबर, जो कि इनिशियली समझा जाता था कि सिर्फ कोर में काम आएगा, कोर का मतलब है मिसाल के तौर पे पेशावर को इस्लामाबाद से मिलाना है, इस्लामाबाद को जेलम से मिलाना है, जेलम को लाहौर से मिलाना है, या एक मुल्क को दूसरे मुल्क से मिलाना है, वहां पे हम ऑप्टिकल फाइबर डालते हैं। लेकिन जब ऑर्डिनरी यूजर ने भी कहा कि मुझे मेगा नहीं चाहिए, मुझे गीगास चाहिए, तो फिर हमने उसके घर तक फाइबर बिछाने का डिसाइड कर लिया। तो यूं हमारा एक्सेस नेटवर्क, कोर नेटवर्क तो पहले ही जो है वो किस पे है, ऑप्टिकल फाइबर पे है। इवन ऑप्टिकल फाइबर समंदरों में भी है, पता है ना आप लोगों को, सबमरीन केबल्स। तो सबमरीन केबल्स के जरिए हम पूरी दुनिया जो है ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड है। 6 साल से पाकिस्तान के दरमियान ऑप्टिकल फाइबर के एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो वो भी एड्रेसिंग बॉर्डर है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर जी बिल्कुल। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ऑलरेडी अब लाजमी तौर पे पाकिस्तान के एंड पे ये चीजें पीटीसीएल देखता है। अब पीटीसीएल ये देखेगा कि क्या हमें जरूरत है, और फिर अब वो ज्यादा प्राइवेट हो चुका है, तो वो उसने ये देखना है कि मेरे लिए फाइनेंशियली ये सूटेबल है या नहीं है। अब पीटीसीएल को तो, अगर मिसाल के तौर पे इनकी पुरानी रिजीम मौजूद होती, तो कभी भी नया टेल और स्ट्रॉन्ग फाइबर जो है वो इस हालत में ना आ सकते, क्योंकि आज भी पीटीसीएल जो है वो कई जगहों पे फाइबर पे नहीं है। और आप मिसाल तौर पे मैं पीटीसीएल का एम्प्लॉय होते हुए एक वक्त तक मैंने तकरीबन 20 साल से ज्यादा पीटीसीएल का नेटवर्क इस्तेमाल किया। लेकिन जब मुझे ये मसला आना शुरू हुआ कोविड के दौरान कि भाई मुझे अपलोडिंग में मसला आ रहा है, आई लेफ्ट देम एंड आई वेंट टू द स्ट्रॉन्ग फाइबर। तो द क्वेश्चन इज कि अगर मैं आपको अगर आप हमारे जो फेसबुक का पेज है उस पर भी जाके देखें, और अगर मैं यहां पर भी आपको सबमरीन पे केबल्स पाकिस्तान, तो हमारे पास कम से कम इसमें कमी नहीं है। आपको अभी पता चल जाएगा कि हम कितनी केबल्स के जरिए दुनिया से मिले हुए हैं। तो शायद हमें उसकी अभी जरूरत नहीं है, या उस पर एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा है, इसलिए हम उसकी तरफ नहीं जा रहे। तो मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाना, ये तो सिर्फ वो बताया जा रहा है कि किस तरह अगर इसमें फॉल्ट आता है तो समंदर के अंदर जाके इस केबल्स को कैसे रिपेयर किया जाता है। लेकिन इस वक्त मेरा मकसद जो है वो एक केबल, एक डायग्राम आपके लिए ढूंढना है, जो कि मैं कई दफा, ये जी, ये वन ऑफ द डायग्राम इज दिस वन। तो अब हम CMEV3 से भी कनेक्टेड है, हम CMEV4 से भी कनेक्टेड हैं, तो मल्टीपल केबल से हम दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं। इसलिए अगर कोई एक में मसला भी आ जाता है, we have the redundant options there। ठीक है, तो थोड़ी देर में अगर ये आपको आ जाता है तो आपको मैं ये दिखा दूंगा कि शायद इसी वजह से हम किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं काम कर रहे। एनीहाउ, जितनी देर में ये ऑफ होता है मैं कंटिन्यू करता हूं ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। तो बात ये कर रहे थे कि हम, ये तो क्लियर हो गया कि हमारा कोर जो है दैट इज ऑल ऑन फाइबर, हमारा मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क्स ऑल ऑन फाइबर। व्हाट मीन बाय मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क्स? व्हिच इज विद इन द सिटी। तो आपको पता है कि पेशावर इज ए मेट्रोपॉलिटन एरिया, पेशावर इज ए मल्टी एक्सचेंज एरिया। यहाँ पे एक टेलीफोन एक्सचेंज नहीं है, 7 है। तो इन 7 एक्सचेंज को 2 तो हैदराबाद में है सिर्फ,
एक आपने चीफ बर्गर देखा होगा, उसके ऑपोजिट है। इसके अलावा सदर में है, और सदर में जो आपने कहा विच इज ऑपोजिट टू द रेलवे स्टेशन, उसके अंदर 1 2 3 कम से कम 3 टेलीफोन एक्सचेंजेस है उसकी, इस एक बिल्डिंग के अंदर। इधर इसकी सीमेंस की अलग है, ZTE की अलग है, अल्काटेल की अलग है, तो मल्टीपल एक्सचेंजेस हैं। इस तरह अगर आप सिटी में थोड़ा सा खैबर बाजार में चले जाएं तो वहां भी आपको नजर आ रहा है। इस तरह कोहाट रोड पे भी है, इस तरह चारसदा रोड पे भी है, इस तरह GD रोड पे भी है। तो इन मल्टी एक्सचेंजेस हैं, तो वी नीड टू कनेक्ट देम अगेन थ्रू फाइबर। लेकिन अब आपके घर तक फाइबर पहुंच गया, एंड वी कॉल दैट इज बिकम द ऑप्टिकल फाइबर हैज बिकम एन एक्सेस नेटवर्क। अब मैंने बताया था कि ये पैसिव भी हो सकता है और ये एक्टिव भी हो सकता है। पैसिव ये बताया था कि आप एक फाइबर से मल्टीपल डेटा लेकर जाते हैं और आप उस यूजर के घर के करीब उसको स्प्लिट कर देते हैं, और वो स्प्लिटर जो होता है वो एक पैसिव डिवाइस है। तो यूं हम उसको कहते हैं पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। जैसे आप में से बाद लोगों ने कहा था जी जीपॉन भी पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क है। PTCL का जहां जहां पे भी अगर ये एक्सेस नेटवर्क है ऑप्टिकल, वो जीपॉन पे है। तो इसका मतलब है कि दे कैन प्रोवाइड यू इन गीगाबिट्स, दे कैन प्रोवाइड यू इन गीगाबिट्स। तो हमने ये बात भी क्लियर की कि जी, और एक्टिव में क्या है कि अब हमें वहां पे पैसिव डिवाइस नहीं लगाया, हमने वहां पे एक एक्टिव रूटर, ऑप्टिकल रूटर लगा दिया। अब ऑप्टिकल चूंकि अब वो एक्टिव है, तो एक्टिव है तो वो इसको बूस्ट कर सकता है, एम्पलीफाई कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है, तो यूं वो लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकता है। ठीक है। उसके बाद अगर ये कोई भी नहीं है, ये सारे वायर्स के थे, तो आपने देखा होगा कि आप जब भी आप कहीं घूम रहे होते हैं तो मोबाइल डेटा ऑन कर लेते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन है। वो भी क्या है, इट कनेक्ट्स यू टू एन ISP which might be of the Jazz, which might be of the Telenor, which might be of the Ufone. तो this is again an access network. बात समझ आ रही? फिर हमने बात की कि ये तो हो गया छोटे स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस के लिए। अब हम बात कर रहे हैं कि हम इंटरप्राइजेस के लिए, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्या करें। उनको ये वाले ऑप्शंस पसंद नहीं आ रहे क्योंकि ये कम है, उनको मेगास में दिलचस्पी नहीं है। इवन अगर आप DSL लेते हैं और आपने इतने मिसाल के तौर पे 10 मेगाबिट पर सेकंड लिया है, मुझे कई दफा स्टूडेंट कहते हैं कि जी हमें तो 10 नहीं मिलता। तो मैंने कहा कि ये हरगिज नहीं कहें कि आपने 10 लिया है। इसका मतलब है कि आपको उन्होंने कहा है कि जी वी विल प्रोवाइड यू 10 मेगाबिट पर सेकंड और इवन लिटिल मोर और लिटिल लेस इफ अवेलेबल। द क्वेश्चन इज इफ अवेलेबल, इट इज नॉट डेडिकेटेड। लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस ये नहीं कर सकती, इंटरप्राइजेस ये नहीं कर सकती कि हुआ तो मिल जाएगा, ना हुआ तो गुजारा कर लेंगे। घर में तो हम यही करते हैं, घर वाला यूजर तो यही करता है कि जब उसके पास इंटरनेट अच्छा आ रहा होता है तो खुशियां मनाता है, और जब कम आता है तो सब्र कर लेता है। बस यही दो ऑप्शंस होते हैं। जबकि इंटरप्राइजेस ये नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, वो एक फिक्स लाइन लेते हैं जिसको कहते हैं लीज लाइन, जिसको कहते हैं लीज लाइन। जैसे UET ने लीज लाइन ली हुई है 498 मेगाबिट पर सेकंड की, जो कि कम है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इस पे हॉस्टल्स भी हैं, इस पे इतने बहुत डिपार्टमेंट्स भी हैं। 498 इज नॉट इनफ, लेकिन दिस इज दी रियलिटी। तो लीज लाइन, शायद हमें 1 गीग चाहिए लेकिन यू हैव टू पे मोर। ठीक। इसी तरह हमने कहा कि अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, यानी कि ना कॉपर है, ना फाइबर है, ना मोबाइल डेटा है, मोबाइल नेटवर्क है, सेलुलर नेटवर्क है, नहीं, सो उस केस में यू कैन इवन यूज द सैटेलाइट, जिसमें क्या होता है कि जमीन पे आपका अर्थ स्टेशन होता है और about 36,000 kilometer above you have the transponder, you have the transponder। तो आप उस ट्रांसपॉन्डर को देते हैं, वो एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी विच इज 6 गीगाहर्ट्ज, और वो उसको ट्रांसफॉर्म करके 4 गीगाहर्ट्ज पे जहां भेजना होता है उधर भेज देता है। मिसाल के तौर पे आप भेजना चाहते हैं टू, मिसाल फॉर एग्जांपल टू तेहरान और
टू इंडिया, न्यू दिल्ली, तो यहाँ पे उनके अर्थ स्टेशन हैं, तो यहाँ से उसने ट्रांसपॉन्डर ने लिया आपसे लो फ्रीक्वेंसी यानी 4 गीग पे कन्वर्ट किया, शिफ्ट किया, एम्पलीफाई किया और दूसरी तरफ उसको ड्रॉप कर दिया। तो यू कैन यूज द सैटेलाइट, बट इट इज द एक्सपेंसिव वे, इट इज द एक्सपेंसिव। ठीक है, फिर क्योंकि एक ही हमें एसडीएल से गिला है, एडीएसएल से, कि अपलोड कम है, उन्होंने कहा नहीं हमारे पास ऐसे ऑप्शंस भी हैं जहां पे आपको अपलोड और डाउनलोड दोनों ही इक्वल मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे, वीडीएसएल मिलेगा, तो वी कॉल इट सिमेट्रिक डीएसएल। तो ये भी इंटरप्राइजेस के लिए एक सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये सारे टॉपिक्स हमने लास्ट क्लास में फ्राइडे के दिन पढ़े थे, आज हमने जस्ट इनको एक रिवीजन दी। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन है इसके ऊपर, मोस्ट वेलकम। ट्रांसपॉन्डर की वर्किंग, जी ट्रांसपॉन्डर का काम ये होता है, इसके लिए इसको ट्रांसपॉन्ड कहते हैं कि ये ट्रांसफॉर्म करता है सिग्नल को। जैसे मैंने भी कहा कि 6 गीग आप जो अपना सिग्नल आपके अर्थ, हमारे पाकिस्तान में 2 अर्थ स्टेशन हैं, एक इस्लामाबाद में और दूसरा कराची में। तो आप करते क्या है कि आप जो भी सिग्नल आपको अपनी पीटीसीएल से जमा होता है, इकट्ठा होता है, आज क्योंकि हम फाइबर पे बहुत आगे जा चुके हैं, लेकिन आज से 20 साल 25 साल पहले, 30 साल पहले हमें अगर ये मैचेस दिखाने होते थे तो उस वक्त ऑप्टिकल फाइबर नहीं था, ये कोएक्सियल के ऊपर नहीं जा सकता था, तो हम सैटेलाइट को यूटिलाइज करते थे। तो अब क्या होता है कि मिसाल के तौर पे जितना भी डेटा आपका पीटीसीएल ने दिया वो उन्होंने इस्लामाबाद को दे दिया, इस्लामाबाद वाले उसको 6 गीगाहर्ट्ज पे शिफ्ट करेंगे और फिर उसको एयर के ऊपर भेज देंगे टुवर्ड दी, जिसको आप सैटेलाइट कहते हैं, मैंने उसको नाम दिया ट्रांसपॉन्डर, तो आपने ट्रांसपॉन्डर को दे दिया। ट्रांसपॉन्डर क्यों कहते हैं कि वो ट्रांसफॉर्म करता है 6 गीगाहर्ट्ज को 4 गीगाहर्ट्ज पे। क्यों करता है? क्योंकि अगर 6 पे ही जाए और 6 पे ही वो नीचे फेंके तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे, एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, तो यानी दोनों में कोलिजन हो जाएगी, दोनों में इंटरफेरेंस हो जाएगी। अगर 2 फ्रीक्वेंसीज एक ही जगह पे आप रखें, यही वजह है कि आप मोबाइल भी इस्तेमाल करते हो तो आपको कहा जाता है, आपका सिस्टम आपको कहता है कि एक फ्रीक्वेंसी नहीं, अगर फॉर एग्जांपल योर नेम रिजा एंड योर सारा, अगर रिजा ने और सारा ने मिसाल तो यूफोन से बात करनी है, ये एक और फ्रीक्वेंसी F1 इस्तेमाल करेगी, मिसाल के तौर पे 900 मेगाहर्ट्ज, ये 901 मेगाहर्ट्ज इस्तेमाल करेगी, तो और दोनों की वॉइस उसी टावर की तरफ चली जाएगी, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे। बात समझ आ रही है ना? इसी तरह अप और डाउन को अलग रखा जाता है ताकि एक दूसरे के साथ ये इनके मिक्स होने के चांस खत्म हो जाए। तो जो आप भेज रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम, और जो आप ले रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, तो दैट कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, दैट कैन बी यूज्ड इन एरियाज वेयर नो अदर ऑप्शन इज अवेलेबल। जैसे आप लोगों ने देखा होगा चंद साल पहले जब कोई भी मीडिया के लोग किसी भी तालिबान लीडर को लाइन पे लेते थे तो कहते थे जी हम सैटेलाइट लिंक के जरिए उनसे कनेक्टेड है, क्योंकि जहां पे वो तोरा बोरा में बैठे होते थे वहां पे ना ही ऑप्टिकल फाइबर है, ना ही वहां पे कॉपर है, ना वहां पे कोएक्सियल है, ना वहां पे यूटीपी है, वहां पे ना ही वहां पे मोबाइल है, ना वहां पे यूफोन है, ना वहां पे जैज है, तो वहां पे एक ही ऑप्शन बचता था विच इज सैटेलाइट। इसलिए वो उन लोगों के पास सिर्फ सैटेलाइट फोन्स होती थी टू कम्युनिकेट। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट द लेक्चर व्हिच वी डिलीवर्ड इन द लास्ट क्लास। आज हम अगले टॉपिक पे आते हैं एंड दैट इज द रिलायबल नेटवर्क्स। आज जिस टॉपिक पे हम आ रहे हैं दैट इज कॉल्ड द रिलायबल नेटवर्क्स। बाय रिलायबल नेटवर्क्स जेंटलमैन वी मीन, बाय रिलायबल नेटवर्क्स वी मीन बेसिकली तो इसका मकसद ये है, लेकिन यहां पे इसको इन 4 चीजों पे रिलायबल नेटवर्क को कहा गया कि वो नेटवर्क जो फॉल्ट टॉलरेंट। क्या मतलब है फॉल्ट टॉलरेंट? यानी कि अगर नेटवर्क में फॉल्ट भी आ जाए तो फिर भी आपका काम चलता रहे।
इसको कहते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। तो लाजमी तौर पे इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आपके पैकेट्स, ये भी बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि पैकेट्स क्या होते हैं, और ये भी बताऊंगा कि डेफिनेटली आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आता होगा, क्यों क्यों किए ये पैकेट्स बनाए? जब इकट्ठा एक जगह पे मौजूद था हमारा डेटा, तो हमने उसको छोटे छोटे पीसीज में क्यों स्प्लिट किया? हमने उनको क्यों छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड किया? कोई रीजन होगा, अदरवाइज तो नुकसान है अगर रीजन नहीं है तो आई विल एक्सप्लेन दिस, नॉट एन इश्यू। तो अगर कोई पैकेट्स आपके नहीं भी रास्ते में ड्रॉप हो जाते हैं, फिर भी वो पैकेट्स डेस्टिनेशन को देना सोर्स की जिम्मेदारी है। इसकी एग्जांपल मैं यूं देता हूं कि अगर आप मिसाल के तौर पे आपने अपने बैच एडवाइजर को कोई एप्लीकेशन दी, उस बैच एडवाइजर ने सेमेस्टर कोऑर्डिनेटर को भेज दी, सेमेस्टर कोऑर्डिनेटर ने चेयरमैन को भेज दी। अब चेयरमैन से उसको डीन जाना था, लेकिन चेयरमैन के ऑफिस में कहीं आगे पीछे हो गई। अब इसका मतलब है कि अगर डीन के पास ये एप्लीकेशन नहीं पहुंचती, इसका मतलब ये नेटवर्क जो है ये अनरिलायबल है। ये नेटवर्क क्या है? अनरिलायबल है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल सेमेस्टर कोऑर्डिनेटर ने उसकी एक कॉपी करके रखा हुआ है अपने पास, फोटोस्टेट करके रखी हुई है, उसका फोटो लिया हुआ है, तो चेयरमैन कहता है जी वो एप्लीकेशन आई थी लेकिन आगे नहीं गई, गायब हो गई, मेन ऑफिस ये कह रहा है। तो सेमेस्टर कोऑर्डिनेटर कहता है मेरे पास उसकी कॉपी है, वो कॉपी उसको दे देता है चेयरमैन को कि आगे भेज दो। तो अब डीन के पास अगर एप्लीकेशन पहुंच गई तो आपको क्या फीलिंग मिलेगी? जी बड़ा रिलायबल नेटवर्क है, कुछ भी हो जाए, कोई फॉल्ट भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, चीजें चलती हैं। और यही डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क का आगे जाके आपको बताऊंगा कि इस वक्त जो ये आईपी नेटवर्क है दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, सेंट्रलाइज नहीं है। ठीक है, तो क्यों इसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया, सेंट्रलाइज से डिस्ट्रीब्यूटेड की तरफ लाए गए? क्योंकि मकसद ये था कि अगर एक सेंट्रलाइज में, अगर एक मिसाल के तौर पे ये क्लास भी सेंट्रलाइज्ड है। क्यों सेंट्रलाइज्ड है? क्योंकि अगर मैं नहीं हूं, कल मैं कहता हूं मैं नहीं हूं, जैसे फॉर एग्जांपल कल क्लास थी, मुझसे बाद स्टूडेंट ने पूछा कि जी क्लास होगी कि नहीं होगी, मुझे यह था कि शायद स्टूडेंट्स छुट्टी है, यूनिवर्सिटी नहीं आएंगे, तो फिर यहां कैसे आएंगे, तो मैंने कह दिया नो क्लास, तो बस क्लास नहीं हुई, बिकॉज इट इज सेंट्रलाइज अप्रोच। इसके मुकाबले में अगर ये अप्रोच होती कि ऑल ऑफ यू आर इक्वल, तो मैं आता ना आता क्या फर्क पड़ता है, आप आपस में बैठ के पढ़ लेते, पॉसिबिलिटी थी। तो कहने का मकसद ये हुआ कि अगर अब डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, अगर आप में से कोई एक नहीं आता एक दिन, अगेन नो प्रॉब्लम, मसला कोई इशू नहीं बनता। तो इस किस्म को अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हम कहते हैं फॉल्ट, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क जो है वो क्यों रिलायबल है, क्योंकि वो फॉल्ट टॉलरेंट है। वो क्या है? फॉल्ट टॉलरेंट है, यानी कि अगर फॉल्ट आ जाए इसको टॉलरेट कर देता है, स्टिल इट वर्क्स। नंबर 2, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब यह है कि अगर आप अपने नेटवर्क का साइज इंक्रीज करें, स्टिल इट वर्क्स विदाउट एनी इशू। मिसाल के तौर पे यहां पे पहले एक एक्सेस रूटर लगा हुआ था, जब आप लोगों की क्लास स्टार्ट हुई हमने सोचा कि क्लास बड़ी है, हमने एक दूसरा एक्सेस रूटर भी लगा दिया कि जी ज्यादा लोग हो जाएं। क्या मुझे इसके लिए किसी की परमिशन की जरूरत थी? हरगिज नहीं। क्या इससे नेटवर्क में कोई खराबी आई? हरगिज नहीं। तो इसका मतलब है कि विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ द नेटवर्क, द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क डजंट डिटेरियोरेट। स्केलेबिलिटी। नंबर 3, quality of service. That's also being considered in the part of the reliable networks. What mean by quality of service? Quality of service का मतलब ये है कि आपका स्पेशली आपका इंटरनेट हर किस्म की ट्रैफिक लेकर जाता है। वो वॉइस ट्रैफिक भी ले जाता है, वो वीडियो स्ट्रीमिंग भी ले जाता है, वो वीडियो ऑन डिमांड भी ले जाता है, वो ईमेल भी ले जाता है, वो आपकी फाइल ट्रांसफर भी करवाता है, यानी मुख्तलिफ काम करता है। क्या तमाम की तमाम जितनी भी एप्लीकेशंस के मैंने नाम लिए हैं, डू यू थिंक दैट ऑल ऑफ देम रिक्वायर द सेम टाइप ऑफ सर्विस? व्हाट इज योर ओपिनियन? यस और नो? नो, they work on
What's your name? अलीशा. अलीशा का ख्याल है कि हर एक को, मिसाल के तौर पे यहां से मैं अपने कंप्यूटर से आसान से एग्जांपल ले लेते हैं. एक ही वक्त मैंने यूट्यूब भी खोला होता है, साथ ही मैं व्हाट्सएप भी कर रहा होता हूँ, साथ ही हो सकता है मैंने ट्विटर भी स्टार्ट किया हुआ हो सकता है मैंने टेलीग्राम भी स्टार्ट किया हो, जूम भी स्टार्ट किया हो, मल्टीपल चीजें. तो कह रही है कि इनको शायद अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे रखा गया हुआ है. तो ऐसी बात नहीं है. ये तमाम जो भी है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू बिट्स एंड दीज बिट्स आर पुट onto the channel depending upon the bandwidth of the channel, depending और वो सबके लिए इक्वल है. बैंडविड्थ की नहीं कि मिसाल तो वॉइस जा रही है तो उसके लिए बैंडविड्थ डिफरेंट है, और अगर फाइल ट्रांसफर हो रही है तो उसके लिए अलग है. लेकिन हमें क्योंकि बाकी जितने भी नेटवर्क्स हैं इससे पहले, इंटरनेट से पहले, ये तमाम नेटवर्क्स किसी खास एप्लीकेशन को ज़हन में रख के बनाए. जैसे मैंने अभी आपको कहा, आपकी वॉइस है, आपका जो पॉट्स है, POTS, पब्लिक टेलीफोन स्विचिंग सिस्टम, या ओल्ड पॉट्स का मतलब है प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम, प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम, पॉट्स. इसको PSTN भी कहते हैं, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क. दैट नेटवर्क इज ओनली डिजाइन्ड फॉर वॉइस and not for data, not for video, not for anything else. इसलिए इसके मुताबिक इसके तमाम पैरामीटर्स को रखा गया. इसी तरह आपके इवन इनिशियली इंटरनेट जब बना था, इट वाज फॉर डेटा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इस तरह आपका केबल नेटवर्क फॉर ओनली वीडियो, ऑप्टिमाइज फॉर ओनली वीडियो. लेकिन इंटरनेट जब बढ़ा तो पता चला कि इसके ऊपर तो मल्टीपल चीजें मैंने डालनी, एक ही नेटवर्क एंड मल्टीपल टाइप ऑफ एप्लीकेशंस. अब ये मिसाल के तौर पे वॉइस को अगर देखो तो वॉइस, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपसे ज्यादा बैंडविड्थ नहीं मांगता, लेकिन डिले बर्दाश्त नहीं करता. क्योंकि अगर आप वॉइस टेलीफोनी कर रहे हैं किसी के साथ और आपको वॉइस कभी आए और कभी ना आए, तो इसको क्या कहते हैं? डिले. इसका मतलब अगर आपका डिले वेरिएबल है, जिसको कहते हैं वेरिएंस, जिसको क्या कहते हैं? वेरिएंस, या जिसको कहते हैं जिटर. तो अगर आपका जिटर है तो आप किसी से बात जब करेंगे तो आप बड़ा एनॉइंग फील करेंगे. लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप कोई फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, FTP कर रहे हैं, अगर वो 10 सेकंड में हो या 12 सेकंड में हो या 15 सेकंड में हो, डजंट मैटर. हाँ, अगर आपके FTP में से कोई पैकेट ड्रॉप हो जाए तो पूरी की पूरी फाइल बेकार. लेकिन अगर आपकी वॉइस से कोई पैकेट ड्रॉप हो जाए, डजंट मैटर. तो देखिए, हर एक की अलग अलग रिक्वायरमेंट है. तो हमें अपने सिस्टम को इतना इंटेलिजेंट बनाना है, रिलायबल बनाना है कि जिस तरह की एप्लीकेशन हो उसी तरह की उसको ट्रीटमेंट मिलेगी. इस अमल को कहते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस. कुछ बात समझ आ रही? इज इट क्लियर? तो आपका नेटवर्क, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वालिटी ऑफ सर्विस इन दी इंटरनेट. जी, मुख्तलिफ तरीके अपनाए जाते हैं. मिसाल के तौर पे हमने मुख्तलिफ फ्लोज, और फिर फ्लोज को हम देखेंगे जब हम थोड़ा सा TCP मॉडल पढ़ लेते हैं. तो we will be having the flows, and every flow have a certain number, and we can treat different flows differently. ठीक? Okay. Then is आज के दौर में सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न बन गया है. बल्कि मैं ये अगर कहूं कि नेटवर्क से भी ज्यादा बड़ी अहमियत इस वक्त सिक्योरिटी की बन चुकी है. और इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल आजकल आप अपने मुल्क में देख रहे हो कि अगर आपका डेटा, आपकी चीजें अगर वो सिक्योर नहीं है तो यू फील वेरी एम्बैरेस्ड. अगर आपकी वॉइस, आपका डेटा, आपकी ईमेल्स, आपका व्हाट्सएप, आपका सारी चीजें अगर में एक सिक्योरिटी का एलिमेंट अगर ना हो, यू विल नेवर बी हैप्पी.
तो जब आप ये चार चीजें आपस में मिला लें, एज पर दिस कोर्स वी कॉल दैट दिस नेटवर्क इज, अगर ये चार चीजें देता है तो इट इज अ रिलायबल नेटवर्क। बात समझ आ रही? यहां पे ये आपको बता रहा है फॉल्ट टॉलरेंस की। फॉल्ट टॉलरेंस आप लाते कैसे हो? लाजमी तौर पे कुछ हासिल करने के लिए कुछ देना पड़ता है। तो आप यहाँ पे क्या देते हो? आप यहाँ पे रिडंडेंसी लाते हो। क्या चीज लाते हो? रिडंडेंसी। क्या मतलब है रिडंडेंसी का? एक्स्ट्रा। जैसे मिसाल के तौर पे इस नेटवर्क में आपको नजर आ रहा होगा कि ये जहां पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, जहां पे मेरा कर्सर मूव नजर आता है, कर्सर, अच्छा, जहां पे मेरा यहां पे लेफ्ट साइड पे जो राउटर है, ये राउटर, और अगर ये नहीं होता तो फिर मैं इसके साथ एक और काम करता हूं। अगर मैं इसको बड़ा कर लूं, होना तो चाहिए, स्लाइड शो, डिस्प्ले सेटिंग्स, setting view and slider, duplicate slide show. या यहाँ पे ये रहूं तो शायद करेगा जी। अब नजर आ रहा है? yes, तो ये राउटर जो है मेरा, ये इस राउटर से कनेक्टेड है और ये राउटर इंटरनेट से कनेक्टेड है। अगर ये राउटर किसी वजह से डाउन हो जाता है तो ये नेटवर्क जो लेफ्ट साइड पे जो कर्सर मेरा मूव कर रहा है, ये पूरा नेटवर्क दुनिया से कट गया। लेकिन हमने क्या किया? हमने इस राउटर को इस राउटर से आदो के जरूरत तो नहीं दी, लेकिन हमने एक एक्स्ट्रा लिंक इन दो राउटर के दरमियान में क्रिएट किया हुआ है। अब क्या हुआ? अगर ये डाउन भी हो जाए इसका, या इस राउटर की ये पोर्ट खराब हो जाए, स्टिल वी हैव द चांस कि हमारी इसकी नेटवर्क की ट्रैफिक इधर चली जाएगी। लेकिन यहां भी हमने ये किया कि अगर ये इस राउटर की ट्रैफिक हमने इधर से भी दी, लेकिन साथ हमने इस राउटर से भी कनेक्ट कर दिया कि अगर ये कोई एक लिंक जाया भी हो जाए, डाउन भी हो जाए, तो मशीन डाउन हो जाए, स्टिल हमारा ये नेटवर्क जो है दे विल बी एबल टू रीच टू द इंटरनेट। कुछ बात समझ आ रही? तो इस तरह हमें क्या चीज मिल गई? फॉल्ट टॉलरेंस मिल गई। हमें क्या चीज मिल गई? फॉल्ट टॉलरेंस मिल गई। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट इज, जैसे मैंने कहा, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब है कि अगर आप इंक्रीज करें साइज, तो आपके साइज इंक्रीज करने से नेटवर्क पे कोई फर्क, नेटवर्क की परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास ये सर्किट स्विच नेटवर्क होता और मेरी टेलीफोन एक्सचेंज 1000, ओके, तो जैसे मैंने अभी कहा कि हाँ, बात में कर रहा था कि अगर मेरे पास सर्किट स्विच की टेलीफोन में मैं काम कर रहा होता, अगर वो टेलीफोन एक्सचेंज 1000 नंबर की है, यानी इसके अंदर 1000 स्विचेस हैं, मैं 1001 कस्टमर भी नहीं दे सकता। यानी जो उसकी लिमिट्स हैं उससे कम हो तो दैट्स नाइस, उससे ज्यादा एक भी नहीं। जबकि सर्किट में हमें यह मसला नहीं होता। कल अगर हम यहाँ पे एक और ऑफिस बनाते हैं, हम वहां तक भी पहुंच जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड स्केलेबिलिटी। Getting? Yes, sir. Then is the next I explained to you is the जी क्वालिटी ऑफ सर्विस। जैसे यहाँ पे आपको कुछ नजर आ रहा है कि कुछ आपके डेटा के कंप्यूटर्स हैं, वर्क स्टेशन हैं, और कुछ आपको टेलीफोन वॉइस और आईपी नजर आ रहा है। अब लाजमी तौर पे जब ये इस स्विच और इस राउटर से जाएगा इंटरनेट की तरफ, जब यहां जाएगा तो डेफिनेटली इनको ज्यादा क्वालिटी ऑफ सर्विस की रिक्वायरमेंट है। ये चाहते हैं कि हमें ज्यादा मत दो, हमें थोड़ा बैंडविड्थ चाहिए लेकिन कंसिस्टेंट चाहिए। यानी ये वाली हालत इनके लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इनके लिए ये कंडीशन का बर्दाश्त के काबिल नहीं है कि अगर मैं यहां पे चला जाऊं Alt Control Del and then I go to the task manager and I show you what is the trend of the applications now in our internet. देखें जी, इस वक्त आई एम यूजिंग दी
वाईफाई, तो देखो मेरी ट्रैफिक आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रही है इस तरह की, कभी हाई कभी लो। देखिए कभी आई एम सेंडिंग एट 400, कभी 352, कभी 312, कभी 376, और अगर मैं खामोश हो जाऊं, हंड्रेड में आ गई। और जो ही बोलना शुरू किया, हाथ हिलाना ज्यादा शुरू किया ताकि ज्यादा वो हो, इट विल गो टू 400, 500 एंड इवन मोर। और अगर मैं अभी साथ एक यूट्यूब का वो स्टार्ट कर दूं, तो यू कैन सी हियर कि अगर मैं यहाँ पे कोई यूट्यूब का जस्ट टू शो यू, और यही हमारे लिए अच्छा भी है और हमारे लिए मसला भी है। आई विल एक्सप्लेन। ये जी हम कोई भी इसमें से वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। लेट इट बी सिराजुल हक साहब को हम सुन लेते हैं कि क्या फरमा रहे हैं। तो ये हमने सिराजुल हक साहब को स्टार्ट कर दिया, और साथ ही हम इसको भी देखते हैं जी क्या क्या अशर होता है। मेगाज में चला गया, एकदम कहीं 200 था, 100 था, कहां पे 900, और यहां पे बात आ गई। ऐसा ही है ना? तो दैट इज कॉल्ड दी अनप्रेडिक्टेड ट्रैफिक। जबकि वॉइस को चाहिए स्मूथ, कांस्टेंट, ये नहीं चाहिए कभी है और कभी नहीं है। ये वॉइस की ख्वाहिश नहीं है। तो आपने, अब मैं इसको अभी क्लोज कर देता हूं ताकि ऐसे भी नहीं चल रहा कि शायद ये हमें नहीं अभी चल रहा। देखिए अभी भी अगर नहीं भी चलता फिर भी ये चीज इंक्रीज के लिए गई। और मैं 4-5 खोल दूं यूट्यूब के डिफरेंट उन पे, यू विल फाइंड दैट इट विल गो अप टू 3-4 किलो मेगाबिट पर सेकेंड। तो कभी तो 100 किलो था और कहीं 4-5 मेगा और इवन मोर देन दैट। तो हमने यहां पे यही बात कर रहे हैं कि हमें क्वालिटी ऑफ सर्विस इनको चाहिए। तो हम इन स्विचेस पे ये इंप्लीमेंट करेंगे, इन राउटर्स पे इंप्लीमेंट करेंगे कि इनकी ट्रैफिक को कम दो लेकिन कंसिस्टेंट दो। तो दैट इज कॉल्ड एज दी क्वालिटी ऑफ सर्विस। बात समझ आ रही? अब क्वालिटी ऑफ सर्विस में सिर्फ डिले नहीं है। यहां पे अगर पैकेट नहीं जा रहा, ड्रॉप कर दो, वॉइस की ट्रैफिक को कोई फर्क नहीं पड़ता, वीडियो की ट्रैफिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका एफटीपी है, उसमें एक बिट भी आगे पीछे हो गया, आपकी 1 गीग की फाइल होगी ऑल गॉन। बात समझ आ रही? ओके, अगेन मैं कह रहा हूं, जहां समझ ना आए इंटरप्ट में, जहां समझ ना आए आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड, नो इश्यू। तो दैट इज दी क्वालिटी ऑफ सर्विस। और आखिरी पॉइंट जो इसका है वो आपको पता है कि नाउअडेज द वर्ल्ड इज टुवर्ड्स सिक्योरिटी। द वर्ल्ड इज टुवर्ड्स सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है? दी नेटवर्क सिक्योरिटी में हम बात करते हैं अबाउट दी, आगे आ जाओ बच्चे, जगह इधर भी है इधर भी है, ताकि जगह की कमी नहीं है। ओके, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? नेटवर्क सिक्योरिटी। Nowadays network security is completely hot, चाहे अटैकिंग की तरफ हो चाहे डिफेंस की तरफ हो। मतलब मैंने, अगर आपने देखा हो तो मैंने अपने YouTube पे आप लोगों के लिए YouTube पे तो है ही है, लेकिन Facebook पे मैंने पहली चीज जो शेयर की हुई है आप लोगों के साथ, क्योंकि मुझे पता है कि इस एरिया में बहुत जगह मौजूद है लोगों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए। तो आप यहां से देख सकते हैं कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी में चाहते हैं तो क्या क्या आपके लिए रोल्स हो सकते हैं। यही बात अभी आपके IEEE के जो नए ओहदेदार हैं उनसे बात हो रही थी, तो वो उनका भी यही कंसर्न था कि हम 4 साल यूनिवर्सिटी में गुजार लेते हैं और हम कंफ्यूज रहते हैं। किस लिहाज से? हमें नहीं पता होता कि हमने किस तरफ जाना है।
ये 4 साल के बाद हमारे लिए कौन सी राहें खुल जाएंगी, और 4 साल के बाद पता जब चलता है तो उस वक्त टू डिलेड होता है। तो इसलिए इन जगहों से हम आपके साथ कांटेक्ट करते हैं कि कम से कम देखो कि आप अगर मिसाल के तौर पे नेटवर्क्स में आते हो, नेटवर्क्स में कौन सी जगहों पे आपने एक्सपर्टीज हासिल करनी है। अगर आप सिक्योरिटी में जाते हो, कहाँ पे आपने एक्सपर्टीज अपनी डेवलप करनी है। अगर आपने ऑटोमेशन में जाना है, कहाँ पे आपको अपने आप को मनवाना है। तो मुख्तलिफ चीजों पे हम बात इस के दौरान, कोर्स के दौरान करते हैं, और जो ही ये ओपन हो जाए आई शो यू दिस। लेकिन उस वक्त तक ये चीज बताता चलूं कि नेटवर्क सिक्योरिटी इज क्वाइट हॉट। अब आपने 2 तरह की सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं आपके, हार्डवेयर को भी सिक्योर करना है, इंफॉर्मेशन को भी सिक्योर करना है। लाजमी तौर पे आप अपनी मशीन को का हार्डवेयर भी आप नहीं चाहते कि कोई इसको गलत इस्तेमाल करे, और आप ये भी नहीं चाहते कि आपकी मशीन के ऊपर पड़ा हुआ डेटा किसी और के पास पड़ा हुआ हो। आप ये भी नहीं चाहते कि आपका ईमेल जो है वो किसी और के पास चला जाए। आपने देखा कि जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बना था यूएस का, क्या इलेक्शन से चंद महीने पहले कोई सोच सकता था कि हेनरी हारेगी और डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा? नो। काम सिर्फ साइबर सिक्योरिटी ने किया कि उसकी ईमेल्स को सामने लेकर आए, और अमेरिका की आवाम तो पढ़ी लिखी है, छुई आपने उनको बताया कि जी हेनरी ने ये किया है, उन्होंने कहा हेनरी गो, और डोनाल्ड ट्रंप जो कहीं भी नहीं था वो सदर बन गया। तो कहने का मकसद ये है कि एक तरफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी करें, और दूसरी तरफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फिजिकल इक्विपमेंट की सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करें। मिसाल के तौर पे आप ये नहीं कर सकते कि राउटर और स्विचेस यूं लगे हुए हैं और हमने इनको ओपन खुला छोड़ा हुआ है। नहीं, दे हैव टू बी इन ए क्लोज रूम, और इसमें सिर्फ ऑथराइज्ड लोग अंदर आ सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। या आपके सर्वर है, मिसाल के तौर पे आपका सीएमएस का सर्वर है जो कि ओरेकल कप पे रन कर रहा है, कोई भी ये नहीं चाह सकता कि सुहेल साहब कभी भी ये नहीं अलाउ करेंगे कि जो मर्जी आता है आए, सर्वर में कोई मसला नहीं है, आके देख ले। नहीं, डेफिनेटली जिसका एफ आया उसने सारे को डिलीट कर देना है, ठीक है ना। तो यहां पे हम बात ये कर रहे हैं कि आपका ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपने हार्डवेयर को भी सिक्योर करोगे और आप अपने सॉफ्टवेयर को भी, अपने इस पार्ट को भी सिक्योर करो। तो इसके मैं जैसे आपको बता रहा था कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये साइट अप नहीं हुई, लेकिन मैं जो चीज आपको बता रहा था कि आपने इसमें अटैकिंग, अगर आप अटैकिंग में अच्छे हैं, बिल्कुल याद रखो साइबर सिक्योरिटी इज लाइक पुलिसिंग या लाइक एन आईएसआई। या तो आपने उसमें अटैकिंग का रोल अपने लिए मुख्तस करना है कि आई विल बी एन अटैकर। लाजमी नहीं कि जैसे मुझे आज किसी ने कहा कि जी आप ये चीजें पढ़ाते हैं तो ये इलीगल नहीं है। वो तो मिसाल के तौर पे अगर आपके पास छुरी है, आपके पास पिस्टल है, तो क्या पिस्टल रखना या छुरी रखना इलीगल है? नहीं, इलीगल तो ये कि हाउ यू यूज इट। अगर आप छुरी से गोश्त काटें तो इससे क्या नुकसान है, लेकिन आप छुरी पकड़ के लोगों को मारना शुरू कर दें तो इट इज इलीगल। तो यहां पर भी हम ये कहते हैं कि अगर आप अपना उसी साइबर सिक्योरिटी को अटैक में भी इस्तेमाल करो, बट यू कैन यूज अटैकिंग एज ए एथिकल, तो वी कॉल इट एथिकल हैकर। तो यू कैन बिकम ए हैकर बट एन एथिकल वन, जिसको आप लोगों ने शायद सुना होगा पेन टेस्टर। सुना है जी? किसने सुना है? अटैक करता है, सिस्टम्स को अटैक करता है, उसी तरह चेंबर उसी तरह अटैक करता है जिस तरह के एक अनएथिकल हैकर करता है, उसी तरह ब्रूटली उसको उन चीजों पर अटैक करता है, लेकिन विद परमिशन। मिसाल के तौर पे अगर किसी को मैं कहूं कि जी मेरे इस कमरे की सिक्योरिटी का मुझे कंसर्न है, चेक करो, वो तो नहीं खराब, लाजमी तो वो चेक करेगा कि खिड़कियां मजबूत है कि नहीं है। वो भी उसी तरह इनको मारेगा कि भाई टूटती है कि नहीं टूटती। अगर टूटती है तो कहेगा देखो यहाँ पे कमजोरी है, और अगर नहीं टूटती तो कहेगा दैट्स नाइस। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके सिस्टम में
ये चीजें भी चेक करनी होती हैं कि कहां कहां कमजोरियां हैं और किस तरह हम उन कमजोरियों को फिल कर सकते हैं। हम ये भी मालूम करेंगे कि आपका, मिसाल के तौर पर, क्योंकि हमने उसी तरह बिहेव करना है जिस तरह अटैकर करता है। हमने, जिसे मैंने आपको पहले भी कहा कि आपका सिस्टम तो अमेरिका में पड़ा है, जिसके लिए आप में भी उसके लिए आप पेन टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पेन टेस्टर होकर उसके आईपीएस फाइंड कर सकते हैं, अगर आप पेन टेस्टर होकर ये मालूम कर सकते हैं कि उस पर कौन कौन सी एप्लीकेशन रन कर रही है, तो अटैकर क्यों नहीं कर सकता? तो विच मीन्स वी डू ऑल ऑफ दिस। इसी तरह डिफेंस, डिफेंस का एक अपना वो है, तो कहते हैं ऑफेंसिव सिक्योरिटी, एक है डिफेंसिव सिक्योरिटी, कि आप अपने डिफेंस को मजबूत करें, तो वो भी एक सिक्योरिटी वालों का जॉब है। इसी तरह अगर अटैक हो जाता है, शायद उस वक्त आप बहुत छोटे होंगे, लेकिन आपने एपीएस का वाकया तो सुना होगा। तो अगर आपने एपीएस का वाकया सुना है, तो जब अटैक हुआ तो पुलिस को कहा गया कि जाके इस चीज को रोको? नो। अगर नहीं तो क्या इन्फेंट्री को कहा गया? इन्फेंट्री तो आपकी बड़ी दामी तौर पे आपको पता है ना, प्यादा फौज, इसको कहते हैं इन्फेंट्री। नहीं, इन्फेंट्री को टैंक नहीं, टैंक इज यूर आर्मर्ड कोर, आर्मर्ड कोर। तो अगर आपने अपने आर्मर्ड कोर को भी नहीं कहा कि जाओ टैंक लेकर जाओ और बिस्मिल्लाह करो, क्योंकि उन्होंने तो आके 10 वो गिराने थे, सारी स्कूल फारग, वो भी जो बीच में थे वो भी गए और बाकी भी गए। तो आर्मर्ड कोर को भी आपने नहीं कहा, आपने अपनी आर्टिलरी को भी नहीं कहा, आपने अपनी एयरफोर्स को भी नहीं कहा कि ऊपर से आओ और बाद में। अच्छा, तो हमने बात की कि हमने एयरफोर्स को भी नहीं कहा कि जाके वहां पे हिट करो। हमने किसको भेजा? एक खास तबके को भेजा, विच आर द कमांडोज। तो यहां पे आपके कमांडोज होते हैं, जिनको आप कमांडो नहीं कहते, बल्कि आप उनको कहते हैं ये इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम है, कि जब इंसिडेंट हो जाता है तो ये रिस्पॉन्ड करते हैं, ये उस खतरे को, उस नुकसान को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। हैं तो सारे साइबर स्पेशलिस्ट हैं, तो सारे साइबर स्पेशलिस्ट, कोई इसमें साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जो नाम दो ठीक है। किसी को हम हंटर कहते हैं, ये साइबर सिक्योरिटी हंटर है, तो वो हम बात करते हैं। लेकिन ये भी एक बड़ा स्पेशल टास्क है कि आपने जब अटैक हो गया तो आपने किस तरह अपने अंदर भी और दूसरे को भी रोकना है। इसी तरह आप अगर साइबर सिक्योरिटी में एक और काम, अगर कोई आपने देखा होगा आजकल जिसको भी पुलिस या कोई भी एजेंसी पकड़ती है, सबसे पहला काम वो करते हैं मोबाइल वर्कर, साथ ही कहते हैं लैपटॉप मुचत गई। क्यों? क्योंकि दे वांट टू गेट दी एविडेंसेस कलेक्टेड। क्योंकि अगर एविडेंस नहीं है और उसको आपने उठाया है, तो वो कल आके सुप्रीम कोर्ट में आके खड़ा होगा कि जी मुझे किस खुशी में आपने उठाया है, तो ये बताएंगे कि जी हमने, इसके पास हमें शक था और हमने ये देखा एविडेंसेस कलेक्ट कर ली है, ये गलत काम ये कर रहा था। तो जिस तरह के आपकी पुलिस ये काम करती है कि जहां भी कोई मसला होता है वहां जाके तो तमाम एविडेंसेस कलेक्ट करती हैं, जो कि कल कोर्ट अबला में आपने प्रेजेंट करनी होती है। तो यहाँ तो कोई कत्ल नहीं किया जाता, यहाँ तो कोई बम नहीं गिराया गया, यहाँ तो कोई गोली नहीं चलाई गई, लेकिन आपने वो एविडेंसेस कलेक्ट करनी है जिसको कहते हैं डिजिटल फॉरेंसिक, डिजिटल फॉरेंसिक। तो ये तमाम के तमाम एरियाज जो हैं, आप समझ रहे हैं, आपको पता है कि दे आर हॉट, दे आर हॉट। इसलिए याद रखो कि सिक्योरिटी में हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं CIA। CIA, हम CIA तो सुना हुआ है ना जी? क्या चीज है? अमेरिकन एजेंसी है। तो अगर किसी IR के स्टूडेंट से हम पूछें तो हम कहेंगे वेरी नाइस। IR तो समझते हैं ना, इंटरनेशनल रिलेशन वाले से पूछें कि CIA क्या है, तो हम वो हमें बताए तो हम कहेंगे ठीक है। लेकिन रिजा हमें बता रही है कि ये CIA कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी है। कॉन्फिडेंशियलिटी, C फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, I फॉर इंटीग्रिटी एंड A फॉर अवेलेबिलिटी। तो CIA ये चीज है। बात समझ आ गई?
क्या मतलब है इसका? इसका मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि आप अपना डेटा, जैसे आपने देखा होगा कि इवन आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो तो वो कहता है कि जी आपका डेटा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। ऑल्दो मैं इस पे डिबेट नहीं करता, लेकिन डिबेट इसलिए नहीं करता कि ये रियलिटी नहीं हो सकती, मतलब वो बेवकूफ नहीं है, वो पागल नहीं है कि वो आपको एक फ्री सर्विस दे रहा है और चार्ज भी नहीं करता और कहता है फिर भी मैं आपको नहीं, वो आपके डेटा के साथ खेलता है। तो कहने का मकसद ये हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपका एक इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि आपका डेटा कॉन्फिडेंस उसका कॉन्फिडेंशियलिटी कायम रहे। यानी कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कोई और ना पढ़ सके, कोई और ना पढ़ सके। और इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? इनक्रिप्शन। क्या आप उस डेटा को इस तरह तब्दील कर देते हैं कि अगर किसी के हाथ लग भी जाए तो उसको कोई समझ नहीं आएगी। नहीं, 01 तो पहले भी 01 है। चेंज कर देते हैं सर, उसे वापस कन्वर्ट बैक करने के लिए आगे रिसीवर को बताने पड़ेगा कि इस तरह से उसको दोनों सेंडर और रिसीवर को पता है कि कौन सा एल्गोरिथम, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं AES है, और दोनों के दरमियान आगे जाके, अल्दो इस कोर्स में नहीं, आगे जाके अगर हम साइबर सिक्योरिटी में जाते हैं तो एक तरीका ये होता है कि आप एक की शेयर करते हो, तो इसी की से आप भी उसको चेंज करते हो, इनक्रिप्ट करते हो, और जो अनइनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है उसको हम कहते हैं प्लेन टेक्स्ट। क्या कहते हैं? प्लेन टेक्स्ट। और जो जब हम उसको तब्दील कर देते हैं तो हम उसे कहते हैं साइफर टेक्स्ट। इसलिए आजकल पाकिस्तान में ये लफ्ज साइफर बहुत ज्यादा चला, क्योंकि साइफर का मतलब है खुफिया। तो यहां पर भी हम कहते हैं ये साइफर टेक्स्ट है। अगेन रिसीवर सिर्फ ये जानता है कि साइफर टेक्स्ट को किस तरह वापस डिसाइफर करना है, प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। लेकिन की तो सर की को आप कह सकते हैं सर एक लूज एंड है, क्योंकि की को हैक करना जो कॉम्बिनेशन जो होते हैं, जैसे अल्फाबेट्स के सब चीजें डाल दें, ऑटोमेशन आजकल यूज करें सर, मिलियंस में भी कॉम्बिनेशंस जो है ना वो ऑटोमेटिकली सारे कुछ कर लेते हैं। वेरी नाइस। लेकिन ये की जैसे मिलियंस में नहीं होती, बिलियंस में भी नहीं होती, क्योंकि आपकी की मिसाल के तौर पे अगर आप आगे जाके हम देखेंगे, अगर आप सिमेट्रिक इस्तेमाल करें तो हमारी 256 512 लेंथ की हमारी की होती है, तो अब 2 की पावर 512 कर लो तो इट टेक्स, और फिर आप उसको अगर वो डिजिट्स दोगे तो 0 to 9, A to Z, कैपिटल स्मॉल नंबर्स, पंक्चुएशन मार्क्स, यानी दुनिया के हर चीज उसमें डाल दोगे, बिकम वेरी टफ। और इसके मुकाबले में जो एस पॉसिबल तो है, वो तो मैंने नहीं कहा कि नहीं है, वो हम उस पर बात करेंगे, हम जब उधर जाएंगे तो हम ये चीजें क्रैक भी करेंगे, तो वो है। इवन इसके तरीके होते हैं कि बाद टाइम वी डू द हैशेस। अब हैशेस ऐसी चीज है कि अगर उसको वन वे पाथ है कि आप किसी प्लेन टेक्स्ट का हैश कैलकुलेट करो, ये बन गया, ये वापसी पॉसिबल नहीं है, तो दैट इज अगेन सिक्योरिटी वेज। तो हम स्पेशली पढ़ेंगे, कल से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क, और हम कहेंगे कि स्विच को पर जाने के मेरे पास दो तरीके, मिसाल के कौन कौन से, एक तरीका कल हम अपनाएंगे, और एक खास किस्म की केबल हम इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है कंसोल केबल। क्या नाम है? कंसोल केबल। उस केबल के जरिए मैं इस स्विच के साथ अपने आप को कनेक्ट करूंगा, और जो भी इसमें तब्दीली करना चाहता हूं, यानी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूं, वो मैं कर लूं। एक तरीका ये है। लेकिन अगर नया स्विच है तो फिर बस यही तरीका है, यानी आपने मार्केट से अभी ये खरीदा है तो बस यही तरीका होगा जो हम कल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, इसलिए छुट्टी नहीं करनी। और इसके मुकाबले में दूसरा तरीका ये है कि ये स्विच यहां पे लगा हुआ है, काम कर रहा है, मैं अपने ऑफिस से बैठ के, मैं अपने घर से बैठ के, मैं किसी दूसरे शहर से बैठ के इस मशीन के ऊपर लॉग इन कर लूंगा, इसको कहते हैं रिमोट लॉग इन। और उसके लिए मैं जो सिक्योर मेथड है उसको कहते हैं SSH। तो मैं SSH इस्तेमाल करके इस पे मशीन पे आ जाऊंगा, बैठा मैं मिसाल के तौर पे उसको कहते हैं इस्लामाबाद में हूं,
काम मैं इस मशीन पे कर रहा हूँ। इसमें भी मैंने सारा टेक्स्ट जो भेजूंगा वो मैं इनक्रिप्ट करके भेजूंगा, और इसके लिए मैं की हो सकता है 1024 बिट्स की इस्तेमाल करूं, तोड़े कोई। बात समझ आ गई? तो कहने का मकसद है कि कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब है कि आपने अपने टेक्स्ट को इस तरह तब्दील करना है कि कोई और उसको ना तोड़ सके, ना पढ़ सके, ना देख सके। गॉट इट? नंबर 2 इज द इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब यह है कि कोई उसको, ये उससे भी अगला लेवल है, कोई इसको तब्दील ना कर सके, और अगर तब्दील हो जाए तो पता चल जाए। मिसाल के तौर पे आप अपने बैंक को कोई एडवाइस दे रहे हैं कि मेरे अकाउंट से, व्हाट्स योर नेम? जानशेर। तो आप कह रहे हैं जकीर जकीर कह रहा है कि जानशेर के अकाउंट में मैं पैसे शिफ्ट करना चाहता हूं। दरमियान में योर नेम अब्दुल्ला सिर्फ एक 0 बढ़ाता है। जकीर क्या हालत होगी आपकी? आपने इसको 10,000 भेजने की कोशिश की और वहां 1 लाख चला गया। और इससे भी ज्यादा अब्दुल्ला खतरनाक हो सकता है कि जानशेर का जो अकाउंट नंबर है, नहीं उसमें अपना अकाउंट नंबर उसमें ऐड करे जी, सिंपल इज दिस। तो वो पैसे जकीर के अकाउंट से जानशेर की तरफ जाने की बजाय वो मंसूर की तरफ भेजता, कहता तमाम मलगरे। तो दिस इज द लॉस ऑफ इंटीग्रिटी। तो यहां पे आप क्या चीजें वो करवाते हैं, इंश्योर करवाते हैं कि डेटा डज नॉट चेंज। बात समझ आ गई? तो हम इस पे किस तरह काम करते हैं, ये भी साइबर सिक्योरिटी वालों का कंसर्न है। एंड थर्ड, अवेलेबिलिटी। क्या मतलब है इस बात का? उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आ रहा होगा कि कितना इंटरेस्टिंग और क्यूरियोसिटी वाला काम है। ठीक है ना? अब अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है? मैं नॉर्मली ये एग्जांपल देता हूं कि पिशावर बोर्ड को अगर हम ले लें, तालीम का तो माशाल्लाह उसने ऐसे ही बड़ा गर्क कर दिया हुआ है, तमाम बोर्ड ने मिलकर किया है। सबकी 101100 में से 1080 80 नंबर आते हैं, तो लाजमी तौर पे या तो आइंस्टाइन एग्जाम देते हैं सारे, 1100 में से 1100, तो वहां तो आइंस्टाइन से भी उसके दादा पर दादा आके देते होंगे। तो कहने का मकसद ये हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन के अगर वो सर्वर करता, वहां पे उनके पास एक डेटाबेस सर्वर है जिसके अंदर वो हर एनुअल एग्जाम के वक्त या सप्लीमेंट्री एग्जाम के वक्त एक खास रिकॉर्ड्स ऐड करते हैं, और आप जैसे स्टूडेंट उसको देखते हैं, अपना यूजर नेम देते हैं और रोल नंबर देते हैं, उनको अपना रिजल्ट नजर आ जाता है। यही उनकी फंक्शनैलिटी है। अगर आप जैसा कोई शख्स उस वक्त उस मशीन को अनअवेलेबल करवा दे, तो उनकी तो सारे साल की साल की मैं मेहनत नहीं कहूंगा, जितनी तबाही उन्होंने की है वो तो किसी को अब नजर भी नहीं आएगी। जो कहते हैं हम लोगों को रिजल्ट देते हैं और इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं, तो यू कैन डू दिस कि वो मशीन नहीं रिजल्ट दे सकेगी और सबको पर नजर आएगा कि जी सर्वर इज बिजी, और सर्वर को काम भी नहीं कर रहा होगा, सर्वर बिजी है। इसको क्या कहेंगे? अनअवेलेबल हो गया है। तो एज ए सिक्योरिटी एक्सपर्ट ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने ऐसी मशीन्स को अनअवेलेबिलिटी से बचाना है। Is there any question? Is there any question? बोलो। सर अगर अवेलेबिलिटी से खत्म कर देते हैं हम लोग, तो सर उससे कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी पे फर्क पड़ता है? सर कोई नहीं फर्क पड़ा। अवेलेबिलिटी का खत्म हो सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल ये सर वो की खत्म, या आप अवेलेबिलिटी खत्म करते हैं, आपका इंफॉर्मेशन का एक्सेस हो जाता है, खत्म हो जाता है। इजी नहीं हो जाता, खत्म हो जाता है। नहीं सर बोर्ड ऑफिस का खत्म कर दिया मैं सर उस ये कह रहा हूं। नहीं उसकी मेरे लिए उसके लिए ओके, द क्वेश्चन इज कि आप उसके ऊपर एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपका सर्वर है, ये बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन का सर्वर है। आप इसके ऊपर फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ तरीके, वन ऑफ द तरीका ये कि मैं इसके ऊपर अनवांटेड ट्रैफिक इसकी तरफ भेजता हूं।
लेट करो कि ये एक वक्त में 50,000 कनेक्शंस के जवाब देने की सलाहियत रखता है, मैंने इसको 50,000 मेरी तरफ से ही जा रही, तो उस वक्त फिर ये रिचा को जवाब देगा? नहीं देगा। अब्दुल्ला को देगा? नहीं देगा। तो इन दोनों के लिए क्या हो गया? अनअवेलेबल हो गया। मेरी अगर मिसाल के तौर पे कुछ पैकेट जाया हो रहे हैं तो मेरे कौन से काम के पैकेट हैं? मैं तो बम्बार्डमेंट कर रहा हूं इसके ऊपर सिर्फ। तो मैं तो इसको, अगर ये 50,000 को है तो मैं इसको 80,000 दे रहा हूं, उसमें 30,000 मुझे पता है कि जाया होंगे, होते रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप लोगों के लिए ये मशीन क्या हो गई है? अनअवेलेबल। और वहां जो लोग बैठे हुए हैं उनको पता चल रहा है कि माशाल्लाह मशीन ऑन दी, वरता यूपीएस हम लगे थे, तो उनको तो ऑन नजर आ रही है, लाइटें जलती हुई भी नजर आ रही है, उनको अपनी बैंडविड्थ भी फुली कंज्यूम नजर आ रही है। लेकिन दूसरा बंदा जो बैठा हुआ है बाहर, वो कहता है ना मशीन को जवाब नहीं कर रहे, ऐसे पता नहीं चलता रिजल्ट एक है। सच दिस अटैक इज कॉल्ड डिनाइल ऑफ सर्विस। सच एन अटैक इज कॉल्ड डिनाइल ऑफ सर्विस, डॉस। तो आपने वहां पे डॉस क्रिएट कर दिया। बात समझ आ रही? तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप साइबर के एक्सपर्ट हैं, तो आपने अपने आप को इस डिनाइल ऑफ सर्विस से बचाना है ताकि नॉन अवेलेबिलिटी ना क्रिएट हो। कुछ बात समझ आ रही? और ये नाइस। इज देयर एनी क्वेश्चन? जी डिनाइल ऑफ सर्विस और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। जी, द गुड क्वेश्चन इज, एक होता है डॉस विच इज कॉल्ड डिनाइल ऑफ सर्विस, एक होता है डी डॉस, एक होता है डी डॉस। डी डॉस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। फर्क क्या है दोनों में? फर्क यह है कि अगर ये मशीन है, अगर मैं इसके ऊपर ये ट्रैफिक भेज रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये बिजी हो जाए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये बिजी हो जाए, दिस इज कॉल्ड, और ये बिजी कर, अगर मैंने इसको कर दिया तो दिस इज कॉल्ड डिनाइल ऑफ सर्विस। अब लेकिन अगर वहां के लोग थोड़ा सी भी अकल रखते हैं तो उनको पता चल सकता है कि एक खास आईपी से ट्रैफिक आ रही है जो कि तंग कर रही है, इस मशीन की बैंडविड्थ को खा रही है, वो अब्रप्टली उनको चाहिए कि फायरवॉल में मेरे उस आईपी को ब्लॉक करें, मेरे उस आईपी को ब्लॉक करें। हम रात को ही ये टास्क अपने ईएनएसए कोर्स में पढ़ा रहा था, वहां पे हमने यही किया कि हमने चेक किया कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है, उसका आईपी हमने फाइंड किया और फिर उस आईपी को अपनी फायरवॉल में डाल के ब्लॉक कर दिया और हमारा नेटवर्क दोबारा नॉर्मल हो गया। इसको, ये तो है डिनाइल ऑफ सर्विस। अब इसके मुकाबले में एक काम ये किया जाता है कि ये जो ट्रैफिक भेजने वाले हैं, ये मैं उस मशीन के आसपास, लेट इट बी 1000 कंप्यूटर्स हैं, 1000 मशीन्स हैं, मैं इन कंप्यूटर को कंप्रोमाइज करता हूं और फिर इनको ऑर्डर करता हूं, आई बिकम द कमांड एंड कंट्रोल, और मैं इन 1000 मशीन्स को कहता हूं वो ले गई। अब मुख्तलिफ आईपी से इस मशीन की तरफ धड़ाधड़ ट्रैफिक आ रही है। अब अगर वो बंदा बैठ के उसको देखता भी रहे तो परेशान होगा कि ये तो एक से नहीं है, दो से नहीं है, तीन से नहीं है, ये तो हजारों से है। तो सच एन अटैक इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। गॉट इट नाउ? तो इसको रोकना टू डिफिकल्ट है। नहीं समझ आ रही? ओके, तो आपको समझ आ गई कि CIA अगर आपको कोई सिक्योरिटी में, साइबर सिक्योरिटी में बात करे तो उसको आपने अमेरिकन एजेंसी नहीं शो करना, बल्कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी शो करना। ओके, टाइम क्या है? 3:50। तो चले थोड़ा सी बात कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, हम अभी तक इंट्रोडक्शन में हैं। नेक्स्ट चैप्टर से हम अलोंग विद दी, याद रखें जब तक कि थ्योरी ना आती हो प्रैक्टिकल समझ नहीं आता। और अगर देनी की, इसका मतलब है कि आपको दोनों पे अबूर हासिल करना होता है। जैसे मिसाल के तौर पे कल आप, अगर हम बहुत भी कम काम करते हैं कल,
तो कम से कम आपको ये सिखा दूंगा कि किस तरह आप इस स्विच को ऑन करते हो, किस तरह आप इस स्विच तक थ्रू ए कंसोल केबल पहुंचते हो, और साथ ये भी क्लियर करूंगा कि किस तरह, क्योंकि घर में तो आपके पास ना स्विच है, ना कंसोल केबल है, और ना ही कोई और चीजें हैं, तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। तो कल मैं ये क्लियर करूंगा कि आपका पैकेट ट्रेसर और आपका ये जो रियल हार्डवेयर है एग्जैक्टली इन पे काम करना सेम है। तो अगर आपने ये बात समझ ली तो देन आपका ये खौफ खत्म हो जाएगा कि मेरे पास तो राउटर नहीं है, मेरे पास तो स्विच नहीं है, मेरे पास तो फायरवॉल नहीं है, मेरे पास तो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम नहीं है, मेरे पास तो इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम नहीं है। हमें किसी की भी फिर जरूरत नहीं है। इवन एडवांस कोर्सेज में मैं, क्योंकि हम हर हार्डवेयर तो स्टैनफोर्ड भी नहीं खरीद सकता, MIT भी नहीं खरीद सकता, ऑक्सफोर्ड भी नहीं खरीद सकता। तो हमारे पास ऐसे तरीके मौजूद हैं कि जैसे हम इसी मशीन को एग्जैक्टली आपको लगेगा कि ये कोई कोर स्विच है, ये वो स्विच है जो डेटा सेंटर्स में काम करता है। दाखिल तौर पर ये स्विच आप डेटा सेंटर में नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये एक्सेस स्विच है। तो अगर आपको आपको अगर डेटा सेंटर लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है तो वहां हम आपको ये वाला स्विच नहीं आपके सामने लेकर आएंगे, दाखिल वो स्विच तो हमारे पास नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम आपको उस स्विच के इसी आपके कंप्यूटर पे आपको वो स्विच बना देंगे, आप उस पर काम करें, जब दिल चाहे बंद करें, जब दिल चाहे काम करें। ठीक है। तो हमारा टॉपिक जो है इस वक्त वो है नेटवर्क ट्रेंड्स, कि नेटवर्क्स किस तरफ जा रही हैं, लोगों की क्या डिमांड है। इन अदर वर्ड्स, लोगों की क्या डिमांड है। लाजमी तौर पे अगर हम उनके मुताबिक अपने आप को नहीं करते तो फेलियर है हमारा। तो इस चीज से बचने के लिए हमारा टॉपिक में जो टॉपिक वो आ रहे हैं, ये इनिशियली 4 और पे भी बात करेंगे। नंबर 1 इज ब्रिंग BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। आज से चंद साल पहले ये ट्रेंड हरगिज नहीं था। आज से पहले आपकी लैब्स, इवन अगर लैब्स की हम एग्जांपल ले लें, हर लैब के अंदर हर टेबल के ऊपर एक कंप्यूटर पड़ा होता था कि जी आपने इस पे काम करना। इस तरह जब आप ऑफिस में जाते थे तो आप अपने खाली हाथ जाते थे, जब आप अपने ऑफिस में बैठते थे आपके टेबल के ऊपर एक कंप्यूटर पड़ा होता था, आप उसको 9 o'clock पे मिसाल के तौर पे ऑन करते थे, 5 बजे छुट्टी करते थे, उसको ऑफ करते थे और घर चले जाते। दैट वाज द कॉन्सेप्ट। लेकिन फिर इट चेंज्ड कि नहीं, मिसाल के तौर पे ये लैपटॉप मैं इस क्लास में भी लेकर आता हूं, यही लैपटॉप मैं सुबह मैंने DSP की लिया तो मैंने उसमें भी लेकर गया। तो कहने का मकसद यही मैं अपने घर भी ले जाता हूं। मुझे कोई ना डीन ना चेयरमैन कोई नहीं कहता कि भाई ये क्यों ले जा रहे हो, क्योंकि ये मेरा अपना है, मुझे नहीं कहा जा सकता कि क्यों ले जा रहे हो। तो दिस इज अ न्यूअर ट्रेंड, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। कल से इंशाल्लाह ताला हम इस पे बात करेंगे कि इस ब्रिंग योर ओन डिवाइस के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। फिर तो ये नया ट्रेंड है, लाजमी तौर पे इसके प्रॉस भी होंगे, कॉन्स भी होंगे। तो एज ए नेटवर्क स्पेशलिस्ट हमें इनको डील करना होगा। नेक्स्ट इज अबाउट द ऑनलाइन कैलिब्रेशन। अब आप कई चीजें ऑनलाइन करना चाहते हैं, ठीक है अब्दुल्ला, हम कोई बहुत से काम हम चाहते हैं कि ये इवन हम बाइंग भी चाहते हैं कि ऑनलाइन करें। अब वो चीजें ही, जैसे बाद लोगों का शौक होता है कि जी हमने शॉपिंग जब तक के दुकान पे जाके ना करें हमें मजा नहीं आता, लेकिन आप कहते हैं जी टाइम नहीं है, बस ऑर्डर करो, खाना भी जो है आपके घर के दरवाजे पे आ जाएगा। इसी तरह वीडियो कम्युनिकेशन बड़ा हॉट है। आज आप अगर किसी से मोबाइल पे भी बात कर रहे हो तो वो आपको कहता है वीडियो ऑन क्या करना, जब तक वीडियो ऑन ना करो तो कहता है कि खबरें खुशी भी नहीं दी। तो इस क्लास में कोई ऐसा तो नहीं, स्पेशली हमारे डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे लोग होते हैं, स्पेशली ज़ारा साइड से, जो कि अगर कुछ तो बोली जाए तो दे फील अनकंफर्टेबल, इनको समझ नहीं आती। तो क्या इस क्लास में तो ऐसा कोई नहीं है? अच्छा ठीक है, वो 2 का वो है कि हमें नहीं है तो ठीक है, आई विल बी कम से कम रखूंगा। सो देन इज द वीडियो कम्युनिकेशन एंड फाइनली इज द क्लाउड कंप्यूटिंग।
अब देखें, आज के दौर में आप हरगिज ये नहीं चाहते कि आप अपने चीजों को अपने लैपटॉप के अंदर सेव करें। इवन आप अपने मोबाइल पे अपने नंबर भी नहीं सेव करना चाहते। क्या कहां करना चाहते हो? क्लाउड पे। आज आप अपना डेटा भी देखें कहां पे रखना चाहते हो? वन ड्राइव, मिसाल के तौर पे वन ड्राइव पे। तो ये बताता है कि नया ट्रेंड क्या है टुवर्ड दी क्लाउड कंप्यूटिंग। तो हम थोड़ा सा इसको भी देखेंगे बड़ा ब्रीफली, और अगर हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है तो देन क्लाउड सिक्योरिटी, जहां पे आप डिटेल में क्लाउड को पढ़ते भी हैं और उसकी सिक्योरिटी को भी हैंडल करते हैं, तो वी विल टॉक अबाउट देम इंशाल्लाह कल की क्लास में। और प्लस हम डेफिनेटली थोड़ा सा स्विच को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो इसलिए फ्राइडे के दिन जो आपका ट्रेंड है छुट्टी करने का, उसको फॉलो मत कीजिएगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। जी, तो gentlemen from the online class where I have Hadika, Haseeb, Kainat, Hasnain, Tayyab, do you have any question? I am listening to you, only to you people now. No sir, no question. कोई क्वेश्चन नहीं? Then all of you, if you have any question, I will be happy to respond to you. Question. जी सैम, जो आप बोलना चाह रहे हैं बोलें। आई एम लिसनिंग टू यू। आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपको आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जिस तरह आपने कहा कि कोई भी शख्स हमारे नेटवर्क के ऊपर अपनी